أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائے. حق کے جلووں کا ٹھکانہ آ گیا، حق کے جلووں کا ٹھکانہ آ گیا. یا نبی تیرا دیوانہ آ گیا، حق کے جلووں کا. لٹ گیا جو عشق احمد میں یہاں، لٹ گیا جو عشق احمد میں یہاں. اس کے دامن میں خزانہ آ گیا، اس کے دامن میں خزانہ آ گیا. میں نے دیکھا روضہ اقدس کو جان، میں نے دیکھا روضہ اقدس کو جان. ان لبوں کو مسکرانا آ گیا، ان لبوں کو مسکرانا آ گیا. زندگی لے کر مدینہ چل پڑا، زندگی لے کر مدینہ چل پڑا. ایسے مرنے کا بہانہ آ گیا، ایسے مرنے کا بہانہ آ گیا. بڑھ گیا عاشقوں کو جیت جی جنت ملی، عاشقوں کو جیت جی جنت ملی. دیکھو نجمی آستانہ آ گیا، دیکھو نجمی آستانہ آ گیا. یا نبی تیرا دیوانہ
حق کے جلووں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعت امامنا مہدی موعود علیہ السلام حضرت پیر و مرشد سید طاہر نجمی میری مدد ذیل کی لکھی ہوئی نئی نعت ہے. مہدی آئے ہیں مہدی آئے ہیں مہدی آئے ہیں مہدی آئے ہیں. جلوے رب کے لیے حق کی طلب کے لیے جلوے رب کے لیے حق کی طلب کے لیے پیام عشق لائے ہیں. مہدی آئے ہیں مہدی آئے ہیں مہدی آئے ہیں مہدی آئے ہیں. آپ پہ جو ایمان لایا ہے اس سے پوچھو کیا پایا ہے. مہدی کی صحبت میں رہ کر وہ راز فنا کو اپنایا ہے. شان سے وہ دنیا میں جیا ہے آپ کی نظروں سے جو پیا ہے. مستی حق میں کھو جاتا ہے اور خدا کا ہو جاتا ہے. ان کی باستی کا اثر ہے ان کی صحبت عشق نظر ہے. صدقہ طلب کا پاک سہارا در پہ ایمان کے ہم آئے ہیں. مہدی آئے ہیں مہدی آئے ہیں مہدی آئے ہیں مہدی آئے ہیں مہدی آئے ہیں. حق کی طلب ہے اپنا خزانہ کھیتی ہر ایک ہے کنز زمانہ. رب کی خوشی میں جینا مرنا اس کے سوا نہ اور سے ڈرنا. مہدی نے پیغام دیا ہے عشق کبھی انعام دیا ہے. کیسے بھلا سکتے ہیں کرم کو ان کی ضرورت جب ہے ہم کو. جب ان کی ہوگی وہ نوازش ہوگی دور یک وہ آرائش. دیں گے لطافت کے وہ خزینے کھل جائیں گے اپنے سینے. عشق کی روح میں آئے گی مستی ہے یہی راز ترک ہستی. ذکر خدا کا آٹم پہر ہو انداز محبت سمجھائے ہیں. مہدی آئے ہیں مہدی آئے ہیں مہدی آئے ہیں مہدی آئے ہیں مہدی آئے ہیں. جلوے رب کے لیے حق کی طلب کے لیے جلوے رب کے لیے حق کی طلب کے لیے بیان عشق لائے ہیں. مہدی آئے ہیں مہدی آئے ہیں. کھل گئے سب اسرار محبت
सब आसार मोहब्बत उनके सदके से पाया है। हक का हर मियार मोहब्बत उनके ऐसा कब कम होंगे। हर लम्हा और हर दम होंगे। नाम है उनका अपनी जुबान पर, चमका है उनसे अपना मुक़द्दर। उनकी मोहब्बत में नजमी हम कितने आला दर्जे हम पाए हैं। मेहदी आए हैं, मेहदी आए हैं, आए हैं, मेहदी आए हैं, मेहदी आए हैं, आए हैं, मेहदी आए हैं। जिसने इस्लाम में जो है बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं, इस्लाम के ऊपर स्टडी की है उसने। वो लिखता है कि दुनिया में अगर कोई सच्चाई है तो वो कुरान मजीद है। इससे अजीम तरीन सच्चाई दुनिया की कहीं मिसाल नहीं मिलती। अब दुनिया की इस अजीम तरीन सच्चाई कुरान मजीद है तो सच किसे कहते हैं? डॉक्टर कृष्ण बिहारी नूर एक शायर था, हिंदुस्तान के बिहार के रहने वाले। सच की तारीफ उनसे सुनिए कि सच किसे कहते हैं। डॉक्टर कृष्ण बिहारी नूर लिखता है सच के बारे में, सच घटे या बढ़े सच न रहे। और फरमाइए इस बात पर कि सच घटे या बढ़े सच न रहे, झूठ की इंतहा ही नहीं। कैसे? 100 को अगर आप 90 पर 9 कहें तो वो झूठ हुआ, 99.99 भी झूठ हुआ। 100 को अगर आप 101 कहें तो भी झूठ हुआ। 100 को 100 कहो तो वो सच है। तो इस तरह अजीम तरीन ये लफ्ज सच जो है आप मामूली समझते हैं, सच बोलो, मगर सच बोलना बहुत मुश्किल है। ऐसा मुश्किल है कि जैसे अंगारों पे कोई नंगे पैर चल रहा हो। बहरहाल एक सच्चाई है कि कुरान, ये तो हुई कुरान की तारीफ। इमाम ने फरमाया कि कुरान इश्क नामा है और इस नामे में ये एक दस्तूर हयात भी है कि शराब हराम है, बदकारी हराम है, सूद हराम है, वगैरह वगैरह, इसका सिलसिला है। और उसके बाद दूसरे ज़िंदगी के पड़ोसियों के हुकूक़ हैं, आदाब वालिदैन हैं, पड़ोसियों के हुकूक़ हैं, और बहुत सी ऐसा कोई शोबे हयात नहीं है जिसको कुरान अहाता ना करता हो। तो ऐसे कुरान मुक़द्दस के निस्बत थी अली जनाब अजीज़ुल्लाह साहब को। किसी ने हमारे डॉक्टर साहब जो आज के सदर नशीं हैं उनसे पूछा कि हादी मियाँ फाउंडेशन और अजीज़ुल्लाह साहब की ताज़ियत से क्या निस्बत है? तो आपने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया। मुझे मालूम था कि अजीज़ुल्लाह साहब मरहूम को जो है कुरान से निस्बत थी, और मैं उस आशिक़ कुरान की एहतराम में जो है जलसे के लिए वो आपने मंजूरी दिया, और वो अपने मन व तन व जान से जो है आज हम आप हमारे सामने हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है। लिहाजा इस मुक़द्दस व मुतबरक जलसे में मैं उनको शख्स नहीं कहूँगा, वो शख्सियत थे। और भी बहुत सी बातें हैं, वो जो इजहार ख्याल का जो मौका आएगा तो सब बोलेंगे, मैं भी कुछ बोलूँगा। तो बहरहाल आज के इस मुक़द्दस जलसे में खुतबा इस्तक़बालिया की ज़िम्मेदारी आली जनाब मियाँ मोहम्मद नदीम साहब पर है। मैं चाहूँगा कि वो सदर नशीं, सामीन हज़रात व फ़ातिमा ख़वातीन और तमाम दीगर शरका से जो है आप खुतबा इस्तक़बालिया खिताब करेंगे। अली जनाब मियाँ मोहम्मद नदीम साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हादी मियाँ फाउंडेशन की जानिब से इस नाचीज़ को जनाब
عزیز اللہ صاحب سابق ناظم مدرسہ مہدویہ ربی مدرسہ اشرفیہ اور سابق RTO انسپکٹر روڈ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کرناٹکا کی تعزیتی جلسے میں اس ناچیز کو استقبال کا موقع دیا گیا ہے. ابھی جب میں استقبال کے موقع کے کلمات آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، اس کلمات میں استقبال کرنے سے پہلے ایسے عظیم ہستی کی تعزیتی اجلاس کا یہ استقبال ہے. یہ استقبال کے کلمات میں اس عظیم ہستی کو جڑے ہوئے چند الفاظ یہاں پر ہیں جس کا میں تذکرہ کرتے ہوئے اس کے بعد استقبال کرنا پسند کروں گا اگر اجازت ہے. اس ناچیز کو استقبال کرنے کا موقع دیا گیا ہے. یہ ناچیز کا جو لفظ ہے، یہ ناچیز کا لفظ جب ہمارے سامنے جب بھی آئے گا تو یہ عظیم ہستی عزیز اللہ صاحب جو ناچیز بن کر اپنے آپ کو ناچیز بنا کر زندگی بسر کیے، ان کی زندگی کے تمام نظارے آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے. ناچیز بن کر کیسے جینا انہوں نے ہم سب کو سکھایا ہے. وہ ایک ایسے عظیم ہستی تھے، جسی بھی محفل میں وہ بیٹھا کرتے تھے وہ ایک عمدہ بڑی سی چیز تھے. اس محفل میں وہی اٹھ کر نظر آیا کرتے تھے، عزیز بھیا بیٹھی بول کر دور سے ہی صحیح سامنے آنے کی حسرت رکھتا کوئی انسان سامنے آتا، عزیز بھیا بیٹھے یہاں پر. ایک 8-10 آدمی کے درمیان میں جب عزیز بھیا بیٹھتے ہیں تو وہی ایک چیز ہوتے ہیں. ایسے چیز، ایسے ہستی اپنے آپ کو ناچیز بنا کر زندگی بسر کیے ہیں. یہ بہت بڑی مثال ہے ہمارا سامنے. ان کا ناچیز اپنے آپ کو بنا کر جینا، مدرسے سے جو تعلق تھا عزیز بھیا کا، ہم سب مدرسے کے تمام ڈائریکٹرز اس بات سے متفق ہیں کہ ہم سب کچھ چیز تھے تو ان کی وجہ سے. وہ ایک عمدہ چیز تھے، اس لیے ہم سب چیز بن کر دکھتے تھے، نظر آتے تھے. تو انہوں نے اپنے آپ کو ناچیز بنا کر رکھا. ایک ایسے ہستی تھے. ان کی جو زندگی ملازمت کی حیثیت سے جو وہ زندگی گزارے، وہاں پر اگر وہ آفس میں موجود نہیں رہتے تو تمام آفیسرز یلپا عزیز اللہ سر، یلپا عزیز اللہ سر، بڑے سے بڑے آفیسرز کی نظر عزیز اللہ صاحب نہیں ہیں اس پر غور کرتی تھی اور مس کرتے تھے. بڑے سے بڑے آفیسرز ہمارے سامنے آفیسرز بھی تذکرہ کر چکے ہیں. اور چھوٹے سے چھوٹا ملازم، ایک گیٹ کیپر، ایک چھوٹا عہدہ رکھنے والا، اس کو عزت دے کر بلایا کرتے تھے بنی لی عزیز اللہ بھیا، عزیز سر. انہوں نے اس زندگی میں جو ڈیوٹی کی زندگی بڑا مقام دیا تھا خدا تعالیٰ. بڑا مقام حاصل کرنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو ناچیز بنا کر وہاں پر بھی خدمت انجام دی. یہ جو ناچیز بنا کر دیے، یہ ان کی جو ادا ہے ہم سب کے دلوں میں ایسی بس گئی ہے کہ لمحہ لمحہ ہم ان کو یاد کرتے رہتے ہیں. یہی ناچیز بننے کی ادا ایسے بس گئی ہے دلوں میں، ہمارے سب کے دلوں میں بس گئی ہے. یہ اتنے بڑے انسان، اتنے بڑے ہستی، اتنے بڑے خوبیاں، اتنے خوبیاں ان کے پاس، خوبیوں کا انبار. اپنے آپ کو کبھی بھی انانیت میں نہیں رکھتے تھے. کوئی بھی ایک انسان
इनके अंदर अना है बोलकर एक लम्हे के वास्ते भी महसूस करने वाला हमना नहीं मिलता, एक इंसान भी नहीं मिलता। इनके अंदर अनानियत है, आरटीओ बनने की अनानियत है, पैसे की अनानियत है, दौलत की अनानियत है, ऐसा बोलने वाला एक शख्स भी इस शहर चन्नपटन में नहीं मिलेगा। यही बोलेगा इतने बड़े आदमी हो को क्या जी नो इतने सिंपल है, क्या जी इतने सिंपल है नो। ये मेरी एक्सपीरियंस है। एक आदमी आपसे मुलाकात करने आया है, मैं वहां पर मौजूद था घर में, आकर पुकारता है अजीज भाई आएंगे। अंदर में गया, बाहर देखा वो आदमी खड़ा हुआ था। वो आदमी अंदर आने से पहले अपना कॉलर ठीक करता है, इनशर्ट ठीक करता है करके अजीज भाई के सामने आ रही है। उसके दिल में ये बात, अजीज भाई के सामने जाकर बैठता है। ये अपने आप को ठीक ठाक कर कुछ चीज बनाकर जा रहा है अंदर, वहां पर देखे तो वो सिंपल बैठे हुए, सिंपल से सिंपल। तो ये ऐसे शख्सियत थे कि भाई ये नाचीज से जो उनका नाता था, ये पक्के महिदवी होने की निशानी थी। अगर अपने आप को कोई पक्का महिदवी कहलाना चाहता है तो इमाम अन्ना के कौल के मुताबिक उसको नाचीज बनना पड़ेगा। ये नाचीज बनकर जिंदगी गुजारे हमारे अजीज भैया। इसके बाद और दूसरे कलमात, इस्तकबाल का जो लफ्ज आया इस कलमात में, वो हर छोटे से छोटे मौके पर छोटे से छोटे बच्चे को इज्जत देकर इस्तकबाल किया करते थे। हमें सब छोटे रिश्ते में उनसे बहुत छोटे अजीज भैया आकर को बोला तो हमारे दिलों में बहुत बड़ा रेस्पेक्ट। जब हमें घर को जाते हैं, आओ जी नदीम, उनका वो बोलने का अंदाज, बुलाने का अंदाज, इस्तकबाल करने का अंदाज, छोटे से छोटे मौके पर इस्तकबाल करने के तरीके से इस्तकबाल करते थे हर रिश्ते को। आओ जी मोहम्मद, आओ जी नूर। मदरसे की कुछ मीटिंग होती, मीटिंग में कुछ डायरेक्टर्स को ही लेट आता, आओ शबीर, आओ जी शबीर भाई, आओ जी बाबा भाई। वो उनका इस्तकबाल जो दिल से करते, किसी को बुलाते हैं तो वो अंदाज ही निराला था। जब मैं ये कलमात बोल रहा हूं, नाचीज, इस्तकबाल मेरे इसमें आ रही, तो मुझे वो याद आ रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे मौके पर जिम्मेदारी दी गई है बोलकर इस कलमात में मैं अभी अभी बोला, इस्तकबाल की जिम्मेदारी के तो मामले में 100% एक्यूरेट, छोटी सी छोटी जिम्मेदारी, बड़ी सी बड़ी जिम्मेदारी एक्यूरेसी के साथ मैनेज करता है। एक्यूरेट 99% नहीं, 100% एक्यूरेट। छोटा काम, कुछ एक पेज लिखना, एक सफा लिखना, वो सफा जो लिखते हैं 100% एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए लिखते। हज कैंप जो करते हैं, हज कैंप में जो है तैयारी करते हुए प्रैक्टिकली हाजी को यहां पर ही हज हो जा रहा है। इस अंदाज से एक्यूरेट तरीके से हज कैंप करते और ट्रेनिंग देते। ऑफिस के काम जो होते थे, अजीजुल्ला भैया चन्नपटना में रहे तभी दावनगिरे से फोन आता, अजीजुल्ला सर ನೀವು ಇದ್ರೇನೆ ಸರ್ ಇದು ಆಗುದು, ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೈಯಿಂದ ಆಗುದು सर, उधर से कॉल आते। और एक ऐसी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई जो अंजुमन का इलेक्शन कराए, ऐसी जिम्मेदारी निभाई वो सिलेक्शन में उन्होंने, शायद फिर से वैसा इलेक्शन अंजुमन का आने वाले दिनों में भी होना लगभग नामुमकिन है। जिम्मेदारी निभाने का तरीका अनोखा था, एक्यूरेट था, किसी को जवाब देने का नहीं था। उन्होंने जिम्मेदारी निभाता, जब एक्यूरेसी जो मेंटेन करता है उनकी तसल्ली के लिए मेंटेन करता है, उनकी खुद की तसल्ली, दिल की तसल्ली के लिए एक्यूरेसी मेंटेन करता है, 100% एक्यूरेट बना दो। तो अगर मैं अजीज भैया के बारे में
बोलता रहूं तो शायद वक्त कम हो जाएगा। बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके बारे में। अब मैं इस्तकबाल की तरफ मुड़ते हुए सबसे पहले मैं डॉक्टर सादुल्ला हादी खुनमिरी साहब का हादी मियाँ की फाउंडेशन से इस जलसे में दिल की गहराइयों से, आप इस जलसे के सदर हैं, आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। और तमाम मदरसे के डायरेक्टर्स शफी भैया, नूर भैया, निसार भैया, असलम भैया, शब्बीर भाई, बाबा भाई, अकबर भाई, तमाम का मैं हादी मियाँ के फाउंडेशन से इस जलसे में इस्तकबाल करता हूं। और अजीज भैया की फैमिली के तमाम मेंबर्स का हादी मियाँ फाउंडेशन की जानिब से इस्तकबाल करता हूं। और अजीज भैया के जितने रिश्तेदार यहाँ पर इस जलसे में शिरकत फरमाए हैं, उन तमाम का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। और अजीज भैया को चाहने वाले, बिना रिश्ते के भी चाहने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनका भी मैं हादी मियाँ फाउंडेशन की जानिब से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं इतना कहते हुए अपनी जगह लेना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम, मेरे अजीज भैया तो मेरे सगे भाई जैसे थे, वो जब भी जो भी कुछ काम रहे और जो भी क्या भी बोलना चाहे तो अर्जेंट हो बोल के बुलाते थे। अब जब उम्रा को गए थे तो उनके पूरे भाई बहन और उनके सब रिश्तेदार थे। मैं कुछ मिलने के लिए गया तो जब भी वो मेरे से बात करके आप भी आइए चलो बोल के मेरा ये मंगा के आप भी पूरा मेरे साथ में लेके गए, तो मेरे एक सगे भाई जैसे मुझे हर बार मेरे को दिल से चाहते थे। वो जो काम करते थे, अल्लाह ताला जब भी हर एक इंसान को सही रास्ते पर सही काम करने के लिए जो भी क्या करते थे, वो अल्लाह का कलाम जो भी है सबको सही पढ़ाने के लिए और अमल करने के लिए, उसके ऊपर अमल करने के लिए वो सभी बात बताते थे। जब भी ट्रेन में बैठते तो उनको एक दिल में ख्वाहिश थी कि सभी भाइयाँ मेरे साथ बैठते ही उठती सभी अरबी सही पढ़ना सीख ले बोल के मेरे से बताते थे। तो सभी एक ब्याच बनाए। तो स्टार्टिंग 3-4 आदमी थे, बढ़ते बढ़ते 40 आदमी की बैच हुई। तो पूरे के पूरे 40 आदमी भी पूरे उनके पास अरबी पढ़ के शब कदर के दिन हदिया हुआ। तो 30 साल हो गए हदिया होने के बाद। तो उनको ख्वाहिश ये थी कि हर एक इंसान अल्लाह के पास सही काम करने के लिए और हमारा मकाम सही बनने के लिए वो क्या करते थे। तो एक कुरान शरीफ सही पढ़ के अमल करने के लिए तो उनकी दिल में वो उनकी मोहब्बत थी। तो हर एक इंसान से मैं भी ये बोलना चाहता हूँ कि हर दिन 5 वक्त के वक्त पर नमाज पढ़ना और कुरान शरीफ समझकर सही पढ़ने, और हमारा आखिरत जो हमारे आखिरत जो अल्लाह के पास सही रास्ते पर चलने के लिए हमारी हशर के दिन हमारा अच्छा मकाम होना, तो हम उनके जो बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन होता है। बल्कि मैं अपनी जगह लेता हूँ। आज की ये मजलिस एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा इंसान, अली जनाब इज़्ज़त माब अलहाज अजीज़ुल्लाह साहब, इनके ताल्लुक़ से अभी भी आपने नदीम मियाँ की ज़बानी कई बातों को सुन चुके हैं। उन्होंने अपने बयान में एक अजीम हस्ती का नाम उन्होंने अजीज़ुल्लाह को दिया। इसी ज़िमन में मैं ये मान के चलता हूँ कि इज़्ज़त माब अजीज़ुल्लाह साहब कौम महदविया के एक रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार इंसान थे।
ایک خوش مزاج انسان تھے، کئی اچھائیوں کے مالک تھے، مخلص تھے، حساس تھے، رحم دل تھے، معاف کرتے تھے. ایسے کئی خصوصیات کے اور ایک واحد انسان مالک تھے. یہ میں مان کے چلتا ہوں. مجھے یہاں پر ان کے تعلق سے کچھ بولنے کے لیے اجازت دی گئی ہے، لیکن میں بھی جیسے کریم بھائی نے بولے ہیں میرے خاص دوست بھی ہیں، وہ میں بھی ایک تعزیت لینے والوں میں سے ہوں. پھر بھی انشاءاللہ میں نے کئی سال ان کے ساتھ بیٹھا تھا، اٹھا تھا، ان کے ساتھ پڑھنا بیٹھنا، بہت کچھ میں نے ان کے ساتھ زندگی میں گزارے ہیں، اور چند خوبیوں کو میں ان کے آپ کے سامنے رکھنے کی حتی الامکان کوشش کروں گا. سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. انسان کو کئی اختیارات دیے ہیں، پیدا کیا اس نے چلنے پھرنے، بیٹھنے، کھانے پکانے، پڑھنے لکھنے، انجینئر بنے، کئی قسم کے اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیا ہے انسان کو. انسان اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتا ہے. وہی اختیارات اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج، ستاروں، سمندر کو نہیں دیا جتنے کے اختیارات انسان کو دیا ہے. لیکن صاحب غور طلب بات یہ ہے کہ یہ ایک اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں دیا، وہ موت ہے. موت جو ہے اللہ تعالیٰ یہ ایسا پورٹ فولیو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے، انسان اسی کی مرضی سے، اللہ کی مرضی سے جائے گا یہاں سے. انسان اپنے اختیار سے مر نہیں سکتا. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اس موت کا بھی اختیار دیتا تو انسان مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. لہٰذا ہمارے عزیز دوست جو اس دنیا سے چل بسے، یہ ہمارے لیے بڑی بہت تکلیف کی بات ہے. ان کے تعلق سے میں نے پچھلے بار بھی کچھ باتوں کو اپنے سامنے رکھا تھا. یہاں پر نوجوان بچے ہیں، میں وہی باتوں کو اور ایک بار دہرانے کی کوشش کروں گا کہ وہ بھی عزیز اللہ بن کر جئیں. کم از کم پورے عزیز اللہ تو آدھے تو عزیز اللہ بننا چاہیے. ان کی خوبیوں کو میں سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے جو عزیز اللہ کا ایجوکیشن ہے اس کے بارے میں 1-2 منٹ بول دو تمہیں. 3 سال ڈپلوما میکینیکل انہوں نے چند پٹنہ پالی ٹیکنک سے پاس کیے تھے. انہوں نے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں ہائی فرسٹ کلاس میں پاس ہوئے تھے. جب تیسرا سال آیا فائنل ایئر انہوں نے کرناٹک کو سیکنڈ رینک میں عزیز اللہ نے کامیابی حاصل کی. اور یہ ذکر پورے کرناٹک میں بھی ہوا، چند پٹن میں بھی منور میں آ کے بیٹھے عزیز اللہ سیکنڈ رینک پاس ہو گئے تھے، ایسا ذکر بھی ہوا، بہت بڑی چرچا بھی ہوئی. اور ان کے سیکنڈ رینک پاس ہونے کے بعد چند پٹنہ میں پالیٹیکنک ہے بول کے بہت سے لوگوں کو معلوم ہوا. نہیں تو چند پٹنہ میں پالیٹیکنک ہے بول کے کرناٹک میں کسی کو معلوم بھی نہیں تھا. تو سیکنڈ رینک پاس ہوئے. اس کے بعد انہوں نے کام کی تلاش میں نکلے ان کے ابا کو ہیلپ کرنے کے لیے. غریبی کا دور تھا اور انٹرویوز کو جاتے تھے، انٹرویوز اٹینڈ کرتے تھے. جہاں بھی انٹرویو اٹینڈ کرتے اگر وہ نہیں گئے تو وہاں سے لیٹر آتا، آپ کو جوائن کر لو، آپ اپنے کیا ہونا سہولت ہمیں کر دو. اتنا اچھا انٹرویو اٹینڈ کرتے تھے، ان کی قابلیت تھی ان کی، اور بلاتے تھے ان کو. لیکن ان کا خیال تھا کہ گورنمنٹ جاب کو جائیں گے بول کے. اس کے بعد KSRTC میں انہوں جم گئے. کئی سال KSRTC میں انہوں نے کام کیا. پھر اس کے بعد اسی دوران میں انہوں نے چند پٹنہ میں ٹیوشن کا انتظام کیا تھا بچوں کو، جہاں میں بھی پڑھتا تھا. SSLC میں انہوں نے بچوں کو پڑھاتے تھے اور وہاں سے قوم کی خدمت شروع کر دیا. انہوں فیس اگر کوئی دیا تو لیتے تھے، نہیں دیا تو پوچھتے نہیں تھے. انہوں کئی کو فیس دینا ہے تو مجھ کو چلے جاؤ کو بھیجتے نہیں تھے. انہوں فری بھی پڑھائے، کم پیسوں میں بھی پڑھائے اور محنت سے پڑھائے. انہوں نے بہت سارے بچے جو اسٹوڈنٹ جو ان کے پاس پڑھے، انجینئر بھی ہوئے، ڈاکٹر بھی ہوئے، بہت کچھ حاصل کیا انہوں نے بچوں نے. اس کے بعد انہوں نے RTO میں انہوں نے کام شروع کیا انسپیکٹر کی حیثیت سے. بڑی عزت کمائی وہاں پر انہوں نے. اس کے تعلق سے ندیم میں ابھی بولے ہیں. میں ایک ہی بات بولتا ہوں جو ان کے RTO کے زمانے کی، ان کی میموری پاور میں آپ کے سامنے بولتا ہوں. جب روڈ پر چیکنگ کو کھڑتے گاڑیوں کو
अगर कोई गाड़ी का नंबर बोलते तो बोलते थे कि नहीं टैक्स बने कि नहीं बने, और बोलते मैं देखो पकड़ तुम दिशा से टैक्स बन को नहीं है। एक आरटीओ की क्या है, उन्हें गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट करना उसका काम। ईमानदारी की बात बोलूँ, उनकी सिंसियरिटी की बात बोलूँ इनको, एक दिन अवश्य से बैठ कर उन्होंने प्रिपेयर होकर होमवर्क करने को जाते थे काम को, दूसरे इंस्पेक्टर्स भी उनसे हासिल करते थे कुछ ना कुछ उनसे। तो ये थे उनके ड्यूटी के हालात। इसके बाद मदरसे में उन्होंने कई सालों से कई बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है, कई बैचेस को उन्हें हदिया किए हैं, मदरसे में बच्चों को पढ़ाए हैं। मदरसे की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने, नाजिम कहते हैं उनको। नाजिम का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटर, पूरा इंतज़ाम करने वाला, पूरा जिम्मेदार इंसान, हर एक काम करने वाले को नाजिम कहते हैं। नाजिम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, पूरा मदरसा लेकर चलते थे, बच्चों को पढ़ाना, इम्तिहानात लेना, हदिया कराना, पूरी जिम्मेदारी उनकी थी। और बहुत चीज़ें सिखा कर गए हैं हमको उन्होंने, मदरसा चलाना कैसा, हज कमेटी में क्या करना है, बच्चों का एग्ज़ाम कैसा लेना है, सवालात कैसे बनाना है, बहुत चीज़ें उन्होंने सिखा कर गए हैं। और ज़रूर हम उनकी सिखाए हुए बातों पर हम अमल करेंगे, और मदरसा में हम उनके जो मिशन था उसको हम कायम रखेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद अजीज़ुल्लाह मस्जिद का काम भी करते थे, मस्जिद के बहुत सारे काम करको ही उन्होंने, उसके एक दो मिसालों में पेश कर देता आपके सामने। एक दिन का वाक़या है कि मस्जिद में वज़ू खाने में सब वज़ू कर रहे थे, वज़ू करने के बाद एक आदमी ज़र्रा फिसल गए। फिसलते अजीज़ुल्लाह के दिमाग में आया, अरे ऐसा आदमी फिसलता है तो गिर जाएंगे ना, यहाँ पर एक एंटी स्किड मैट डालना। उसी वक्त पे उन्होंने फैसला ले लिया। उनको फैसला लेने की बहुत कैपेसिटी थी, डिसीजन क्विक लेते थे उन्होंने, हर एक आदमी को नहीं आता हुआ, वो अल्लाह की देन थी, उनको डिसीजन लेते थे और पूरे कमेटी को साथ लेकर चलते थे। जो भी काम करना दिल में आता तो कर को रहते थे, उन्हें सबको सुनाते थे मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर आप भी इसमें हिस्सा लेती तो ले सकती। और सभी मेंबर्स उनकी हिमायत करते थे और उनका साथ देते थे। फ़ौरन उन्होंने 29,000 रुपये का एक एंटी स्किड ला के उसी दिन डाल दिया। उन्होंने आप जाकर देखो जामिया मस्जिद में बेहतरीन इंतज़ाम किए हैं उन्होंने। और उनकी बहुत बड़ी खूबी क्या है, मस्जिद में उन्होंने जो काम किए हैं हमेशा के लिए याद रखने का, वहाँ पर उन्होंने एक बोरवेल का इंतज़ाम किया। सबसे पहले 2 बोरवेल थे जो फेल हो गए थे, तीसरा बोरवेल डालने का उन्होंने दिल में ख्याल किया और उसे कर को ही रहे। उन्होंने सबको सुना मैं कर रहा हूँ ये काम, जो भी आदमी चाहता है हिस्सा लियो करो। और उसकी भी खुसूसियत देखो, सुबह में काम शुरू हुआ 8 बजे, ड्रिलिंग होता गया, शाम के 8 बज गए, 9 बजे पानी आया नहीं। और मायूस भी नहीं होने, अल्लाह से उम्मीद थी उनको। बच्चों को बोलते थे दुआ करो, पानी आया से दुआ करो। और आदमी तनकीद भी करते थे, हमें बोले नको करो तो मैं कर रही ना करो, लेकिन उन्हें करते थे बराबर। अल्लाह का फजल करम है, रसूल महदी का सदका 790 पाठ का ऐसा पानी आया वहाँ पर। और उनकी इतनी खुशी की इंतहा नहीं, आज 5 साल से वही पानी जो अजीज़ुल्लाह जो खड़को जो बोरवेल डलाए वही पानी में वज़ू कर रही मस्जिद में। ये उनकी बहुत बड़ा उनका एक कारनामा है हमारी मस्जिद के लिए, जामिया मस्जिद के लिए। और ऐसा कई उनकी खूबियाँ हैं, जैसा करीम भाई बोला, अगर बोलते जाएंगे तो पूरी रात हम बोलते ही रहेंगे। और जामिया मस्जिद में जब उन्हें इंतकाल हुआ तो उस वक्त ताज़ियत के वक्त हमारे मुर्शद मजबूत मियाँ के फर्जंद एक सेंटेंस बोले उनके बारे में, शुएब मेहदी, ताज़ियत सिर्फ अजीज़ुल्लाह के घर वालों को नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले वालों को बोलना है। सिर्फ मोहल्ले वालों को नहीं, मस्जिद के मुसल्लियों को बोलना है ताज़ियत, और साथ साथ में पूरी कौम को हमें ताज़ियत बोलना है। इसमें ये जुमले में वो पूरे अजीज़ुल्लाह की पूरे खूबियाँ, उनके पूरे औसाफ, उनकी काबिलियत पूरी इसमें जम हो गई है। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ करता हूँ, या अल्लाह अजीज़ुल्लाह को तेरे दीदार से मुशर्रफ कर, उनकी मग़फ़िरत कर दे, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मक़ाम अता करे, और उनके पसमानदगान को लवाहिक़िन को सब्र जमील अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का यहाँ पर हम अपने कौम के एक मोतबर हस्ती के ताज़ियत इजलास में जलसे में जमा हुए हैं। मैं सबसे पहले हादिमिया फाउंडेशन के
सदर और उनके अरकान जो ख़ासकर से ख़वातीन हुआ करती हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि कुरान से दिलचस्पी रखने वाला शख्स ही कुरान के मदरसे में काम करने वाले की अहमियत को जानता है और उसकी कदर करता है। ये हमारा अलमिया है। कौम में तनकीद बहुत ज़्यादा होती है, तामीर बहुत कम होती है। काम जहाँ होता है सिद्क़े दिल से ही क्यों ना हो वहाँ पर तनकीद आ जाती है। अज़ीज़ुल्लाह साहब में एक बहुत बड़ी अदा ये थी, तनकीद बराए तामीर को वो कबूल करते थे। कोई काम कर रहा है, आप वो काम कर रहे हैं, उसमें गलती है, मैं तनकीद करूँ उसे कबूल करते थे। ये उनकी बड़ाई थी। मैं एक छोटा सा खाका उनके ताल्लुक़ से पेश करूँगा, ज़रा समाअत फरमाइए। अली जनाब अज़ीज़ुल्लाह साहब एक तालीम याफ्ता घराने में, वो भी एक ताजिर घराना था। वहाँ पर 8-3-8-5-1956 में आपकी पैदाइश हुई। उर्दू मदरसे में तालीम हासिल किया उन्होंने। शुरुआती दौर में आपने चनपटना में उर्दू मदारिस में तालीम हासिल की। आपके वालिद मोहतरम हज़रत मुनव्वर साहब एक मुदरिस थे। बहुत सारे बच्चे उनके जहाँ बैठे हुए हैं, उनके वालिदैन या वालिद वो पढ़ा करते थे। शायद यहाँ भी कुछ होंगे। जब उनको मैसूर को ट्रांसफ़र हो गया तो शायद अज़ीज़ुल्लाह साहब जी वहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए चले गए। ये मैं कब मालूम हुआ, जब कैलेंडर्स बिक्री करने के लिए हमने गए तो उन्होंने रास्ते में दिखाया, देखो हम यहाँ सैयद अली साहब का घर है। रास्ते में करीम साहब भी अच्छी तरह, सैयद अली साहब भी उनको जानते हैं, उनके रिश्तेदार हैं। दिखाया, हमें बचपन में ये जगह पर आते थे, खेलते वगैरह थे। हज़रत आ गए छुट्टी उट्टी के लिए, हम भी यहाँ पर आ गए। उसके बाद मैसूर से वापस ही चनपटना हुई। खरियो में हज़रत को तालीम पढ़ाने का मौका मिला। उसके बाद यहाँ पर हमारे अजीज़ दोस्त अली जनाब सैयद अल्लाह निसार मेहदी साहब ने जिक्र किया पॉलिटेक्निक का। वहाँ पर PUC के बाद पॉलिटेक्निक हासिल की। डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद आपने KSRTC में दाखिला ज्वाइन किया, वहीं से थे मुलाजिम। उसी दौरान उन्होंने मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में RTO के हिस्से से काम किया। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने KSRTC में हो, मोटर डिपार्टमेंट में हो, नदीम साहब सैयद अल्लाह निसार मेहदी साहब ने भी जिक्र किया है, बहुत बड़ा नाम कमाया। आपके अपने रिश्तेदारों में, आपके रिश्ते के फूफू के घर में आपने शादी की अपनी फूफरी बहन से। अल्लाह का फजल एहसान और करम है, बेहतरीन औलाद अल्लाह ताला ने, 2 मर्द बच्चे, एक बेकू बच्ची दी। साथ साथ अल्लाह ताला ने बेहतरीन दामाद भी दिया। रिश्तेदार बहुत अदब व एहतराम से उनसे मिला करते थे। भौनी हो, बहनें हो, घर के बच्चे हो, अदब व एहतराम उनमें पूरे फैमिली में था। उनके पास अदब व एहतराम से पेश आते थे। उनका ऐसा, और उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी, दौरान मुजाहिबत उन्होंने मदरसे को अपने तन मन धन से उन्हें कबूल किया था। हर हमेशा मदरसे काम में लगे रहते थे। ये पहले भी मुखरीन ने कहा है। उससे मदरसे में बहैसियत नाजिम मेरा अजीज़ दोस्त सैयद अल्लाह निसार सईद साहब ने फरमाया। उसके बाद महदविया मदरसे अशरफिया का और एक फलाह एजुकेशन ट्रस्ट हमें एक जगह खरीदी है अल्लाह के फजल करम से, रसूल मेहदी के सदक़े में। उनके एक देराना अरमान थी जगह खरीदना। हम साथियों ने उनका एक बड़ा काम मदरसे के मेम्बरान का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। उनकी बात पर लब्बैक कहते थे, बराबर दीवार की जगह खड़े रहते थे। जगह ली, वहाँ पर एक आलिशान मदरसा बनने का एक उनका इरादा था। अगर अल्लाह और रसूल मेहदी चाहे तो एक तामीमात होगी, वहाँ मदरसा खुलेगा, स्कूल्स दूसरे, उनके जो जो भी ख्वाब हैं इंशाअल्लाह हमें कोशिश करेंगे वो जारी रखने के। आप तमाम दुआ फरमाएं। तनकीद पहले बला में तनकीद बराए तामीर के लिए कबूल करते थे। वो सिद्क़े दिल से, दिल के आंखों से वो कबूल करते थे। छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, जो भी हो, कुछ तनकीद भी कर कबूलते हैं। ठीक है भाई, न को ये काम न को, ठीक है, सब कुछ साथ लेते। सबसे बड़ा कामों में उनका काम हुआ करता था कैलेंडर को 2-4 महीने पहले से, जो ग्रीन कैलेंडर आधा साल गुजरता कोई ढूंढ लेगा था। हमारे घर में कैलेंडर बच्ची की निस्बत है, शादी है, ज़रा कैलेंडर मैं भी दुकान में बेचा करता था। नूर भी बेचते थे, मदरसे बिकता है, एजाज मेहदी के घर में बिकते, शब्बीर के घर में उनके वो कोटरसन बिकता, हमारे महबूब गौरी महबूब उनके घर में बिकता। हर 20 रुपये से शुरू होने वाला कैलेंडर
3.5 रुपये में जो प्रिंट होता था कैलेंडर पहले, हाजी रशीद में, मुनर में हजरत मोहम्मद में साहब, उनके साथ रहीम शमा साहब, एक मुस्तफ़ा नसर, उनके ज़माने में 20 रुपये चंदा हुआ करता था। हमें साथियों मुनर में हजरत दिखाते थे फलानी फलानी जगह बेचना, वहाँ से होते आज अल्लाह के फजल से उनके कामों में कैलेंडर को जो अच्छी खूबसूरती दी, अच्छे से ढंग में जो देव दूर तक पहुँचता है, बाहर की कंट्री को भी जाता है। बहुत सारे यहाँ के महदवी हजरात जो महदवी बच्चे बाहर हैं, उन्हीं की खूबी थी। हज कैम्प का बनाना उन्हीं का एक था, ये देराना ख्वाब था। हम साहिबान ने सोचा था कि इस बार करना या ना करना करके, बाद में चाय पानी पर गुजारा कर देते, लेकिन हमारे पास भी एक दो खाने और खिलाने वाले अल्लाह के बंदे नूर इजाज़त हुई, नहीं खाने पीने का इंतजाम कर हाजियों को रखेंगे, ठीक है कि वो भी अल्लाह की वजह से कामयाब हुआ। मस्जिद इफ्तियार कमेटी 4 मेंबर पर शुरू हुई थी, सबने 100 रुपये 50 रुपये चंदा डाला था। सबसे पहले अजीजुल्लाह साहब ने, अली जहाँ मदरसे के सदर शफीउल्लाह साहब, हमारे सईद अलाम निसार मेदी साहब, ये बंदा सब ने 100 रुपया 50 रुपये डाल के कमेटी बनाई। आज अल्लाह के फजल से सिंध पटना में बेहतरीन तरीके से अल्लाह उसका रसूल काम ले रहा है। कंटिन्यू ताक़यामत तक अल्लाह से दुआ करें जारी और सारी चलता रहे। मदरसे की देखभाल हमारे में एक बहुत बड़ी खामी है। हाजी रशीद का इंतकाल हुआ, नौजुबिल्ला मदरसा बंद हो जाता बा होगा। महमूद में साहब का इंतकाल हुआ, और कौन भी देखने उठा ले चले और बोल डालते बुना उन्होंने गुजरे। मुनर में हजरत ता हयात उन्होंने मदरसे से घर को भूल गए, उन्होंने बीवी बच्चियों को भूल गए, शर्ट निकाल को फेंक डालते बाजू, जहाँ असलम रहते क्या भी बोल खाओ जरा चापा नहीं, लिखते बैठे रहते। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान मैं सदर मसूफ से बोलना चाहूँगा। हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी दिल्ली वाले सदर साहब जरा गौर का, हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी ऑल ओवर इंडिया का एक सर्वे करा है। उस सर्वे में क्या पूरे मदरसों का जायजा लिया गया। सबसे बेहतरीन मदरसा डिक्लेयर 2 मदरसों को किया गया। मदरसे शाह वलीउल्लाह बेंगलोर वो मदरसा, उसके बाद महिदा और अभी मदरसा सिर्फ चनपट्टा, ये मदरसे का जिक्र ये बुक में प्रिंट हुआ है। हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी वालों ने उसमें प्रिंट किया है। ये हमारे कौम को, हमें नहीं, ये मदरसे को एजाज है। उसका सिला जाता है अली जिन्ना मुनव्वर में साहब को। उनके फर्जंद अजीजुल्लाह साहब थे, जैसे बाप थे, उन्हें हिसाब किताब के लिए पक्के के पक्के थे। ये मैं तहसीन पेश करता हूँ नजरत को। आज बुजुर्गों को जो गुजरे हैं, बुजुर्गों को तमाम को हमारे मुझत हो। उसके बाद दिल में तजवीद के सिलसिले में काम हुआ। ये भी अजीजुल्लाह साहब, उनका शफीउल्लाह साहब, निसार मेदी, तशरीफुल्लाह साहब, ये उन लोगों की देन थी। महिदा रबी मदरसा जो शुरू हुआ, आपको ताजुब होंगे, आज हम जो बैठे हैं उनके अम्मा भी मदरसे में पढ़े, हो सकता है उनके नानियाँ भी पढ़े रहेंगे जो बच्चे बैठे हैं। ये हंसने हंसाने की बात नहीं, सिर्फ 4 बच्चों से मदरसा शुरू हुआ था सदर साहब। सबसे पहले उसके बानी सदर बानी मदरसा अली जनाब अलहाज सैयद रोशन साहब तशरीफ लाई, हमारे मदरसे के बानी, उन्होंने ईजाद की। 4 तुलबा थे उसमें, शफीउल्लाह साहब और सदर मदरसे के अजीजुल्लाह साहब, रहमत भाईजान साहब, और उसके बाद में शायद तशरीफ या निसार मेदी, मेरे को भूल रहा हूँ, ये थे। 4 बच्चों पर मुश्तमिल हदिया हुआ था। सिर्फ शक्कर डाला तुम में, सरी शक्कर मंगाए हमने। ये भी अजीज भाई बोला है, या सामने बैठी सुनो होकर को बोली, शायद हो सकता है ये भी हमें सुने थे। अजीज भाई बोले थे हमने, ऐसा हुआ था जे आज थे तरपा घर को कर रही, मैं जरा कम करना अगर को सोच रहा हूँ, सुन रही नहीं मेरी बात, जरा मैं करी कर जरा तुम लोग हम बोलो ऐसा है। इशरत को, उनको नूर को जरा बोलना जी जरा है। हमारे पास डिस्कस करते हैं, फिर उनका मामला है, बच्चे की खुशी है, माँ बाप की खुशी है। एक बच्चे को बुलाए तो कहते ही हो जाती ना रंद है, चलो अगर हमें भी खामोश होते। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का दुआ शुक्र अदा करता हूँ। मौला करीम बोलें तो बहुत ज़्यादा है। उनका मामला था, एक दिन हमें शफीउल्लाह साहब मदरसे में कार में जा रही, पूरे छोटी सी हंसने हंसाने की बात भी है। किसी को पैसा देना था हमें, एक जमात खाने को हमारे तरफ से मदरसे, आज देने होता नहीं है, हमें भी नूर इट बदल है, उर्दू जबान चनपटना की जुबान नूर इट बदल देने होता नहीं। हम ना नेक्स्ट देंगे पैसे, हम ना पैसे होना हमें जगह ले दी मदरसे को, हमें पहले देखो, हमें यहाँ से सिर धो लेगा, बाद में तुम्हें दो। हमारा सदर साहब शफीर
हमें 20-20 वाला है इन दो में कौन शफीउल्लाह भी अजीज भी मैं माफी चाहता हूँ सदर साहब शफीउल्लाह साहब तुम्हें भी नूर 19-20 क्या है हुआ तो देखेंगे नहीं तो नको करो बोलने वाला है वैसा नहीं हमें बोल दिन देते हैं तो दयाल इंसान तुम्हें क्या सो करो तुम्हें चंदा वसूली करना था जगह के लिए वो टेम्पो ने कहा था पैसे पहुंचा हम ना बोले असलम ये कौम का मामला पहले तो अल्लाह रसूल में दे अल्लाह जो मदरसे तुम्हें जगह खरीदी करे जरूर कामयाबी देता रसूल मेदी के सदक़े में कामयाबी बिल्डिंग है दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से सबसे पहले हम ताज़ियत लेने वालों में ही मदरसे वाले ये बड़ी बात है हमें ताज़ियत अदा करने वालों में हमें शुमार ना करें मेहरबानी करें ख़ानदानों से पूरे अदब एहतराम के साथ मैं माफ़ी चाहते हुए अल्फाज कह रहा हूँ अगर दुख की बात करूँ मैं भी एक दुखी ख़ानदान से हूँ चूँकि थोड़े दिन पहले मेरे वाले मोहतरम गुजरे उससे पहले हमारे घर में एक नौजवान बच्चा गुजरा उसके बाद इनकी मौत हुई उससे पहले उनकी वालिद मोहतरमा अजीज़ुल्लाह साहब की वालिदा गुजरी उससे पहले अलहाज सैयद रोशन साहब तशरीफ़ लाही उनकी बहू गुजरी ये पूरा आलमिया कहीं नहीं कहाँ हमें हमारे घराने को शफी भाई घराने को अजीज़ भाई को हमारे बुज़ुर्गों को कहीं कहीं रिश्ता है मैं भी ताज़ियत लेने वाला हूँ बोलता चलूँ तो बहुत देर तक बोलता चलूँगा लेकिन आप तमाम से मैं ताज़ियत अदा करते हुए ये ना समझेंगे हमें ताज़ियत अदा कर रहे हैं आज होना तो ये था वो मौजूद होते हमारे दरमियान मदरसे की बिल्डिंग तामीर होती कौम के कुछ काम होते यहाँ पर उनकी खुशी होना चाहिए था दुख की घड़ी है लेकिन ये एक बात है करीम साहब ने बोले सच टाली नहीं जा सकती 99 हो या एक युवक हो वो सच जो है आखिरी में छोटे से वाक़े पर मैं बात को ख़त्म करना चाहूँगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र हो रहा था शैतान दरमियान में मिल गया मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा शैतान से तो किस तरह इंसानों को वरगलाता है आज हमारी कौम की बेबसी इसी है तो उन्होंने शैतान ने कहा मैं 5 तरीक़ों से इंसान को वरगलाता हूँ 3 बोलने की 2 बोलने की नहीं आपको भी मालूम होगा शायद मैं फौकियत लेने की नीयत से नहीं बोल रहा हूँ आज की हालात ऐसी है मैं बोलना चाह रहा हूँ 3 बोलने के हैं 3 बोल तो 2 बोलता नहीं इमीडिएट वही अल्लाह की तरफ से वही आती है वो 3 बोलने का नकौ ने 2 कौन से पूछो अर्जेंट करके बोलता अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम बोलती शैतान को वो 3 नकर बा वो 2 कौन से तू बोल डाल गती उन्हें समझता हो मैं सपड़ गाना क्या ये हिस्सा वही आ गया सिंकू ठीक है उन्हें बोलता है एक हसद दूसरा लालच वो कैसे मूसा अलैहिस्सलाम बोलती हैं मूसा अलैहिस्सलाम को बोलता है शैतान एक हसद दूसरा लालच कैसा जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम को खानों को घूम गुंदम खाना कर बोले अल्लाह ताला वो खाने चले गए उनको लालच वो हसद मेरा पुतले को सिजदा करो कर बोले आदम अलैहिस्सलाम को मैं करें हसद ये 2 चीज़ें हैं अल्लाह ताला से दुआ करता अल्लाह मेरा मालिक मौला करीम हमें और आपको हसद और लालच से बचाए इस मदरसे को दिन दुनिया राज्य फरमाए मज़हब इस्लाम का परचम ताक़यामत में इस्लाम के नाम सदक़े हमें उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए इन लायकीन को मैं खासकर से उनके घर वालों को बीवी को बच्चों को दामाद को भाइयों को बहनियों को सभी को मैं हदीमिया फाउंडेशन की जानिब से महिद अरबी मदरसे शफे की जानिब से आप तमाम को मैं दुखी वक्त में आप तमाम के साथी अल्लाह तमाम को सब्र जमील अता फरमाए मुकर्रर में हदीमिया फाउंडेशन को और सदर को मुबारकबाद देता हूँ आपके हक़ में दुआ करता हूँ आपके काम में भी बहुत टाइम आता था मसरूफियात की वजह से 1-2-3 महीने मेरे काम रुके आपकी खिदमत में आना सका लेकिन मालूम होता है आपके काम हफ्ते में 3 या 4-5 मरतबा आपकी तफसीर चलती है ये बड़े किसी बस की बात नहीं 10 मिनट देखो आधा घंटा देखो बैठ नहीं सकते वो हम पर 5 दिन तक कंटिन्यू चलाना आप जो ड्यूटी में होते हुए काम करते थे अल्लाह हासिदों के असर से बचाए आपको सेहत तंदुरुस्त फरमाए इतना कहते मैं अपनी जगह लेता हूँ जहाँ पर मैं ख़ास कर से हमारे मदरसे के मोहतमिद सैयद अब्दुल करीम साहब अंजुम का ममनून मशकूर हूँ जहाँ आपकी निज़ामत हो वो अल्लाह के फजल करम से जलसा कामयाब हो जाता है मैं आपको इस जलसे की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती और अमन में रखे खुदा हाफिज़ आप सब अजीजुल्लाह साहब के बारे में बहुत कुछ सुन चुके हैं
मेरे पास अल्फाज नहीं ही उनके बारे में कुछ बोलने के लिए। वो एक ऐसी शख्सियत थी जिसके बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम है। जो भी काम मदरसा का हो सबसे पहले मेरे पास आते, भैया ऐसा है, ये करेंगे क्या? इजाज़त लेते, नहीं जी अजीज ये न को, ये निकाल का हिस्सा करोगे तो होंगे भैया। जो भी काम है मदरसा का होंगे, इसका होंगे, अप टू डेट अकाउंट्स लिखते बोलते हैं मनो, आज 1 तारीख या 2 तारीख, उसके अंदर मेरे पास आते देखो हिसाब, ये महीने का इतना हिसाब है भैया देख लो। मैं यूँ ना बैठ को पूरा चेक करते, करेक्ट था, एंट्री करते, रख डालते, अप टू डेट हिसाब रखने वाले। एक नया पैसा इधर का उधर नहीं, आज तक मैं बोल रहा हूँ ना, आज तक मदरसे का एक नया पैसा इधर का उधर हुआ नहीं। ऐसी शख्सियत, अल्लाह को जो मंजूर है वही होने वाला है। हमारे पास तुम्हारे पास इसके सिवा बोलने का वैसे कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाए। और आपको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सादुल्ला मियाँ साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि ताज़ियती जलसा जो हमारे मदरसे में हुआ, मेरे दिल को इत्मीनान ना रहा। मैं इस ज़ौक़ व शौक़ को लेकर घूमता रहा। जब मुर्शिद के पास आया, मेरा ख़याल इजहार करने के बाद लब्बैक कहते हुए उन्होंने मेरी इस ख्वाहिश को जामाए पहनाने के लिए आमादा हो गए। आप सब मेरे मेंबर्स को, साथियों को अजीज़ुल्लाह की कारकर्दगियों का बहुत कुछ सा आपके सामने आ गया। मैं इसी को दोहराना नहीं चाहता, वक्त ज़्यादा लगेगा। मैं सोचा था कि 1 घंटा बोलूं, मगर यहाँ वक्त नहीं है। इसलिए मैं मदरसे के जिस शख्सियत की ताज़ियत के लिए ये रखा गया है, मदरसे में और भी नाज़िम थे, सदर थे, बानी थे। कुरान के ताल्लुक़ से, तजवीद से पढ़ाने में अलहाज सैयद रोशन तशरीफ़ुल्लाह ही ये बोलते थे कि भाई मदरसे के सनद जो थे वो सनद हैदराबाद से आते थे। उसके बाद में उनकी ये ख्वाहिश थी कि चन्नपटन से सनद दिया जाए। अजीज़ुल्लाह अपनी नौकरी के बाद भी हमको सबको आकर ट्रेन से सबक पढ़ाया करते थे। 50 की, 25 की, 30 की, 20 की बैच होती थी। इतने कुरान कंप्लीट करते थे। शायद उनके कंप्यूटर में कितने कुरान कंप्लीट करें इसका इल्म उनको होगा और उनके बहनों को भी होगा। मगर आज की ये बात, आज की जो ये ताज़ियत है, मदरसे के बहुत सारे हमारे अच्छे अच्छे शख्सियत जो ज़्यादा मालूमात थे, इनका भी गुज़र हुआ है। मगर इनकी वजह, ताज़ियती जलसा करने की इसकी वजह ये है कि तजवीद के साथ कलाम को कंप्लीट करके सनद याफ्ता बनाकर हर घर को मदरसा बना दिया उन्होंने। हर घर को मदरसा बना दिया। मैं ये समझूं कि हर घर में इल्म है और ये इल्म आम होता जाए और सब उनके पास पढ़ने की ज़्यादा उम्र वाले भी ख्वाहिशमंद थे और वो भी आकर पढ़ते थे और बच्चों को तो पढ़ाते ही थे। वो
हर एक मसले के अंदर मेरे शेयर करते मेरे साथ। उसके बाद आइडिया तो भी दो, बहुत सारे काम उनसे हमें लिए हैं। दुख इस बात का कि वो आज हमारे साथ नहीं रहे। उम्मीद थी और बहुत कुछ करने का, पर शायद खुदा को मंजूर नहीं। मैं आप लोगों को मदरसे के ताल्लुक़ से 1971 में जब ये क़ायम हुआ तो हमारे दोस्त ने कहा था कि तुम्हें 3-4 आदमी पर मुश्तमिल था। शाहनामा इस्लाम मस्जिद में पढ़ाया जाता था। हज़रत मुनर मियाँ साहब उनकी रवानगी में पढ़ते, वो जो उन्होंने पढ़ते हमें वो सुनने के वास्ते वाटरसन से वहाँ को आते थे। एक बार का किस्सा ऐसा हुआ, गनी मियाँ की स्कूल में मुनर मियाँ हज़रत मास्टर थे। बच्चियों को पढ़ाने नहीं आते थे, बच्चियों को कलमे नहीं पढ़ाते थे। इनो एक्साइज डिपार्टमेंट में थे। उसके बाद इनो आपको हमें ताइल्म रख ले को, ये सीने से दूसरे सीने को कुरान को ये करना, ये फ़िक्र ले को आए को मदरसा बनाना कर को कोशिश करे। जब से भी मेरा साथ उनके साथ रहा, उनकी कारकर्दगियों को देखता गया, उनके जोश को देखता गया। उसके बाद में जो शाहनामा इस्लाम सुनने बैठते उसमें से 3-4 आदमियों को ले लिया, उन्होंने ले को मदरसा बना दिया। उसके बाद में सनाउल्ला को लाए, उसके बाद में मुस्तफ़ा को लाए। इससे पहले रहीम शमे थे, मुस्तफ़ा थे। ऐसी शख्सियतें भी हमारे पास आए और गए, हमें इसका अफसोस न रहा। मगर अज़ीज़ भैया की ये ताज़ियती जलसा करने की एक वजह है कि वो उन्होंने तजवीद के साथ कुरान को आम करे और अनगिनत लेडीज़ एंड जेंट्स को मुकम्मल तौर पर कुरान की तालीम दी गई और उनके तरफ से हमें लोगों को सीखने का बहुत मिला। बता रहे थे हमारे दोस्त, हमारे साथियाँ कि भाई उन्होंने उनकी अना को नहीं दिखाया, उनके पास अना नहीं थी। उन्होंने अपनी आन बान शान को घटाने के बाद भी एक मामूली इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारे। उन्होंने कभी भी मैं ऑफिसर न कर को बिल्कुल नहीं सोचते थे। उन्होंने जब भी कोई मिलने आता तो उनका एहतराम बराबर करता था, वो एहतराम के काबिल भी थे। इनकी इन तमाम का ना करने के बाद में ये मदरसे से ये ताज़ियती इजलास करने का जो हमारे दिल में ठान लिया हमें ये करना, ये लोगों को दिखाना। 50 पर 1 साल हमारे मदरसे के इब्तदा से लेकर आज तक गोल्डन जुबली होना था हमें। आज हमें एक जलसा मना रही, वो भी ताज़ियती। एक ऐसी शख्सियत को खो दिया, हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इतना जल्दी इन्होंने हमारा साथ छोड़ दी। वहाँ बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है। आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। आपसे एक इल्तिजा है मेरी, जो भी उनके पास तालीम पाए कुरान की अपने घर में आम करो, अपने घर के बच्चों को पढ़ाओ। जैसा हमें 2 बच्चों को लेकर मदरसा खोले, इसी तरह आपके 5 बच्चों में 2 बच्चों में अपने घर में तालीम को आम करो। कुरान हर घर में हर दिन पढ़ाया करो, पढ़ा करो। मैं बोलना चाहूँ तो और भी बोलने के पास मेरा अल्फाज तो हैं, मगर मुर्शद ने मुझे ब्रेक लगा दी है। फिर भी मैं वक्त ज़्यादा लिया हूँ। मैं आज कुछ कम सरस किसी की शान में अगर कहा हूँ भी हूँ तो मुझे माफ़ करना, और मैं अपनी तकरीर को तो रोक रहा हूँ और इस वक्त अपनी जगह ले रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह तबारक तआला का इरशाद है अपने मुक़द्दस कलाम में
کہ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ فقراء اکرام، معزز سامعین مجلس، کثیر تعداد میں جمعی عزت ماں پردہ نشین خواتین، آج کی یہ مجلس ایک خصوصی مجلس ہے، اپنے آپ میں یہ تعارف کرا رہی ہے اور قرآن کی آیت کہ جس میں یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے اور بہت پیارے الفاظ اللہ استعمال کرتا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ زندگی پہلا رخ ہے اور موت اس کا دوسرا رخ ہے۔ جہاں زندگی برحق ہے اور وہاں موت کا بھی برحق ہونا لازمی ہے۔ کوئی موت سے نہ بچا اور نہ بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر بار وہ دو چیزوں کو پیش کرتا ہے، اس لیے کہ وہ واحد ہے اور اس سے ہٹ کر قیامت تک کے لیے جو بھی وجود میں آئیں گے وہ واحد نہیں ہو سکتے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو جہاں دوری کی بات آتی ہے وہاں زندگی کے ساتھ موت لگی ہوئی ہے، خوشی کے ساتھ غم ہے، صحت مندی کے ساتھ بیماری ہے، امیری کے ساتھ غریبی ہے، دن کے ساتھ رات ہے، اچھائی ہے تو برائی ہے، اگر مٹھاس ہے تو اللہ نے وہاں کڑوا پن بھی رکھ دیا ہے۔ یہ میں جتنی باتیں بتا رہا ہوں یہ سب دنیا اور دنیاوی چیزیں ہیں، جن کا تعلق دنیا سے ہے، اور دین میں بھی اللہ دو کو رکھتا ہے، ایک ہے نبوت اور دوسری ہے ولایت۔ دین اور دنیا، دنیا ہے 4 دن کی، لیکن یاد رکھیں کہ دنیا میں جو بھی علم تم حاصل کرتے ہو، دنیا میں جو بھی تم محنت و مشقت کرتے ہو، خون پسینہ جدوجہد، تم جو بھی کماتے ہو، اور علم بھی یاد رکھیں جو تم دنیا کا علم حاصل کرتے ہو وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے اسٹوڈنٹس اور بچوں میں دیکھا ہوگا آج کل کہ بچہ جب بستہ لگاتا ہے تو کتابیں پیچھے رہتی ہیں، اور قرآن شریف کی جب بات آتی ہے ہمارے پاس قرآن کو پیٹ دکھانا بھی بہت بڑا عیب اور گناہ سمجھتے ہیں، اور قرآن شریف کو ہم اپنے سینے سے لگا دے رکھتے ہیں۔ یہ خود عاقلوں کے لیے نہیں، عاشقوں کے لیے اشارہ ہے کہ تم ہزاروں لاکھوں کتابوں کا علم حاصل کر لو، جس کا تعلق دنیا سے ہے وہ پیچھے کا پیچھا رہ جائے گا، اور یہ اللہ کی کتاب کا علم جو تم اپنے سینے سے لگا کر حاصل کرتے ہو، اللہ کہتا ہے یہاں بھی کام آئے گا، خبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔
और जहाँ मैंने 2 की बात की, अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम को भी हुक्म दिया था कि हर एक का जोड़े की शक्ल में अपनी कश्ती में बिठा लो। ये जोड़े का सिलसिला वहाँ से शुरू होता है। चरिंद परिंद, 4 पाई वाले, हत्ता के इंसान, सारे के सारों को अल्लाह कहता है कि जोड़े में लेकर आ जाओ, कश्ती में सवार हो जाओ। ये मामला क्यों पेश आया? ये मामला इसलिए पेश आया क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अल्लाह तबारक व तआला की तबलीग करते रहे, दीन की तबलीग करते रहे, अल्लाह का कलमा पढ़ाने समझाने की कोशिश करते रहे। आलम यह था उस दौर का कि उनकी उम्मत सुनकर भी अनसुनी कहा करते थे। हक बात कही जाती तो अपने चेहरों को ढक लिया करते थे। और एक पैगंबर इतना मायूस होते हैं, इतना रंजीदा होते हैं कि अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ बारी ताला, तो इस कौम को फनाह कर दे, इस कौम को तो सजा सुना दे। और अल्लाह को भी यह मंजूर था, तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करते हुए हुक्म देता है कि ऐ नूह, तुम एक कश्ती बनाओ और सबको सवार कर लो। सबसे मुराद जो हमारे हुक्म के ताबे हैं, सबसे मुराद जो तुम पर ईमान लाते हैं, सबसे मुराद जो तुम्हारी बात की कदर करते हैं, सबसे मुराद जो तुम्हारी बात को मानते हैं, उनको कश्ती में ले लो। मज़ीद ज़्यादा तफसील में गए बगैर जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती तैयार करते हैं, काफिर पूछते हैं, ठट्टा मजाक उड़ाते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो नूह अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं कि मैं एक घर ऐसा बना रहा हूं जो पानी पर टिक सके। इस पर भी सारे के सारे हंसने लगे, ये कौन सा घर है जो पानी पर टिकने वाला है। लेकिन अल्लाह का हुक्म हो चुका था, अज़ाब नाजिल होना था। जबरदस्त तूफान आया, हुक्म खुदावंदी के तहत जो कश्ती में सवार थे सारे के सारे बच गए, और उससे हटकर जो भी थे सारे के सारे तबाह व फना हो गए। आज ये बात मैं इसलिए ला रहा हूँ, उसमें नूह अलैहिस्सलाम के बेटे, अब बोल रहा हूँ के बेटे, लेकिन बाद में बोलूँगा नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, इसलिए कि उसने अपने वालिद मोहतरम अल्लाह के पैगंबर की उसने नाफरमानी की थी। नूह ने अपने बेटे से कहा, हे बेटा, ये अल्लाह की तरफ से आने वाला अजाब है, तुम आ जाओ, मेरी कश्ती में सवार हो जाओ। लेकिन बेटा जवाब देता है बाप को, मैं तुम्हारी कश्ती में सवार होने वाला नहीं हूं, पहाड़ की चोटी पर मैं पहुंच जाऊंगा, चढ़ जाऊंगा, और आने वाले पानी के अजाब से मैं बच जाऊंगा। होता वही है, अजाब आता है। नूह अलैहिस्सलाम, ये जुमला याद रखें मेरा, नूह अलैहिस्सलाम देखते हैं अपने बेटे को, अपने फर्जंद अर्जुमन को डूबता हुआ। वालिद की जबान से निकलता है, या इलाही, मेरे बच्चे को बचा ले,
अल्लाह ने कहा हरगिज नहीं। डूबा, गर्क हो गया वो बच्चा। फिर नूह अलैहिस्सलाम खुदा की तरफ मुतवज्जे होकर दुआ करते हैं, या इलाही मैं इसकी मग़फ़िरत करना चाहता हूँ, ये दुआ करना चाहते हैं। फौरन अल्लाह का हुक्म होता है, ऐ नूह, तुम्हारे बेटे के हक़ में तुम मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते, इसलिए कि वो हमों में से नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, या बारी ताला, तूने तो वादा किया था कि तू हमारे अहले ख़ानदान को तो बचाएगा। फिर अल्लाह कहता है, ऐ नूह, हम उसको बचाते हैं जो तेरी बात की कदर करते हैं, जो तेरी बात को मानते हैं, हम उसको बचाते हैं। और ये इसका शुमार जालिमों में हो चुका है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? आज मैं मौत के जरिए, मौत का फलसफा सुनाते हुए ये पैगाम आपको देना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि दुआए मग़फ़िरत सिर्फ अपनों को की जाती है, गैरों को नहीं। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। आजकल का ये रिवाज बन चुका है, ये गैर बैदवी, एक ही कलमा वो है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, कुरान उनका वही है, तो क्या हम उनके हक़ में दुआ नहीं कर सकते? तो मैं कहता हूँ, जाओ सूरह हूद की आयत पढ़ो। अगर किसी को चस्का है तो सूरह हूद की 36वीं आयत से 47वीं आयत तक आप गौर से पढ़ो। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ उसका जवाब आपको वहाँ मिल जाएगा। क्रिश्चियंस क्या ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते हैं? पैगंबर को मानते हैं, लेकिन है कोई हम में से जो उन पर दरूद भेजने वाला है? क्यों नहीं भेजते? इसलिए नहीं भेजते, उन्होंने मोहम्मद का इनकार किया अहमद के इंतजार में। एक अल्लाह के हुक्म के इनकार के बिना पर उन पर हम दरूद नहीं भेज सकते, वो लानती हो गए। जरा गौर करो, मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम आए और गए, और अभी इंतजार में हो कि मेहदी आएंगे, कि जैसा सुम्मा नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद का इनकार हुआ, ऐसा ही इंतजार में रहने वाले मेहदी का इनकार कर रहे हैं। जैसा पैगंबर के औलाद को, पैगंबर के लुख्ते जिगर को अल्लाह ने मना कर दिया मग़फ़िरत की दुआ करने से, हम तो पैगंबर की औलाद नहीं हैं, हम उम्मती हैं, और हम पर भी ये हुक्म आयद होता है कि तुम दुआए मग़फ़िरत करो। तो किसकी करो? जो हमों में से हैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ करो। वरना क्या होगा? जज्बात में, जोश में आकर तुम लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए अगर तुमने गैरों के लिए मग़फ़िरत की दुआ की, तो याद रखो अल्लाह ताला के पास तुम दुआ करने के वाले सारे के सारे अल्लाह के पास जवाब हो जाएंगे। और आज जिस हस्ती का जिक्र आप लोग भी सुनते चले आए हैं, मैं सच कह रहा हूं मैं कि मुझे बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जाहिर, बातिन, सोच, किरदार, लेन देन सब कुछ आ गया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, और वो ये है, नाम अजीज है, लेकिन वो अजीज ने लजीज पने को अपना लिया था।
جس کی وجہ سے اس میں لذت آ گئی تھی، جس کی وجہ سے سارے کے سارے اس کی طرف چمٹنے لگے. اور یاد رکھیں کہ شکر جب ڈالی جاتی ہے، چونٹی یہ نہیں دیکھتی یہ مسلمان ڈالا ہے، ہندو ڈالا ہے، شرابی ڈالا ہے، یا کون ڈالا ہے، یہ نہیں، اس میں تمیز نہیں ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ چونٹی کا تعلق ہے مٹھاس سے. جہاں مٹھاس ہے وہ چلی جائے گی. ایسا ہی یہ بندہ جس نے لذیذ اور لذت کو اپنے آپ میں اپنا لیا تھا، جس کی وجہ سے ہر شعبے والے اس کی طرف آکرشت ہونے لگے. میرے سے ایک بار ان کی ملاقات ہوئی تھی. میں ان کے گھر پہ گیا تھا، شاید ان کے پرزن کو یاد ہوگا، شاداب کو. تو میں نے جب ان سے گفتگو کی تو انہوں نے جو ان کے کارنامے تھے پڑھائی تجوید کو لے کر، درس کو لے کر، تو وہ مجھے بتائے اور بہت تفصیل میں مجھے بتائے. اور بتائے آخری میں کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اگر کچھ تبدیلی کرنا ہے تو آپ بتائیے. اس کو کہتے ہیں سادگی. اور پھر اس کے بعد آج میں بتا رہا ہوں، پورے آج تک کے اشرفیہ مدرسے کا میں نے رینجر دیکھا، پورا ڈیٹا میں نے دیکھا، اور میں ایک کمنٹ لکھ کے بھی آیا ہوں پورا دیکھنے کے بعد. اور وہ اتنا اپ ٹو ڈیٹ تھا، کب سے شروع سے لے کر میں جس دن دیکھا اس دن تک سارے کا سارا اتنا اپ ڈیٹ ہے. میرے دل میں خیال آیا کہ کمپیوٹر پہلے ہی پیدا ہو گیا تھا، اس لیے کہ آج کمپیوٹر ہوا ہے، آج یہ اپ ڈیٹ رکھتا ہے، ہم نہیں کر سکتے. تو یہ کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ یہ صرف آتا ہے، یاد رکھو، انسان کی لگن. انسان جب اللہ کی کتاب سے جب جڑ جاتا ہے، جو مجھے تھوڑا تھوڑا احساس ہو رہا ہے ابھی ایک صاحب نے کہا کہ 50 سال ہو گئے، گولڈن جوبلی منانا چاہیے تھا اور افسوس کا مقام ہے. میں بتاؤں آپ کو، نہیں، یہ خوشی کا مقام ہے. گولڈن جوبلی میں عزیز کا اللہ کے پاس چلے جانا یہ بہت بڑا انعام ہے. دنیا سمجھ رہی ہے ہم کھو دیے. میں کہتا ہوں ارے برتھ ڈے جو ہوتا ہے ہم کیا مانگتے ہیں؟ کوئی اچھا سا گفٹ مانگتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے. کار، کچھ نہ کچھ. عورتیں تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں 50 سالہ کی محنت و مشقت کی عوض میں اللہ نے اس کو جو عزیز تھا اس کو اپنے پاس بلا لیا. میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا تحفہ ہے، اسے مایوس مت ہو. اور یاد رکھو، موت ایک صرف بہانہ ہے. موت ایک جگہ سے دوسری جگہ کے منتقل کو کہتے ہیں. اس دنیا میں تھے، اب اس کے بعد اس دنیا میں گئے. خالی ہے انتقال منتقل، جیسا کہ ٹرانسفر، اور یہ سب کو ہونا ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات، آپ لوگوں کو بھی ایک بہت بڑا ایک سبق ہے اگر آپ سیکھنا چاہیں تو، وہ یہ ہے اللہ کا کلام زندہ، اور اس کی حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ تبارک تعالیٰ. اللہ خود کہتا ہے کہ میں اس کا محافظ ہوں. کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے.
हमको क्या करना चाहिए? मैं कहता हूं ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो जिंदी चीज है और जिसका मुहाफिज अल्लाह है, उससे जुड़ जाने की कोशिश करो। अजीजुल्लाह ने वही किया, जिंदी चीज से जुड़ गए। आज ओझल हुए हैं, लेकिन ऐसा मत समझो कि वो चले गए नुकसान में, हरगिज नहीं। जिंदी चीज से जुड़े हैं और ये वही जिंदगी उनके जिंदपन की अलामत है, और हमको भी यही करना चाहिए। और जो मैं बात बताया कि अल्लाह का कलाम जिंदा है, जिंदा जावेद है, और अल्लाह उसका मुआफिज है, तो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुरान को पता नहीं क्या क्या नामों से पुकारा गया। मेहदी सलाम फरमाते हैं सारे नाम एक तरफ, बंदा कहता है इश्क नामा। कितना प्यारा लफ्ज है। तो क्यों ना हम इश्क नामे को अपना लें, क्यों ना हम इश्क नामे को अपना कर जिंदगी में, अपनी पूरी जिंदगी में उसको उतारने की कोशिश करें, खुद भी उतारने की कोशिश करें और अपनी नस्ल को भी उसी की ट्रेनिंग हम देते रहें। आज जितने भी यहाँ पर नौजवान भी हैं और दूसरे हजरत भी हैं, उनसे मेरी एक खास गुजारिश है कि जो काम वो शुरू किए वो रुका नहीं है और ना वो रुकेगा। ये बंदे का ईमान है। हाल ये हाथ बदली हुई है, हाल ये जहन बदला है, लेकिन काम जरूर होगा। और इसी के लिए मैं दीगर मदारिस के असातिज़ा को उनको मैं बुलाना इसीलिए भी पसंद किया, एक मैसेज देना चाह रहा था कि अशरफिया मदरसे का जो एक अजीज तुम जानते हो, जान चुके हो, देख चुके हो, ऐसे ही तुम में भी एक एक अजीज बनने की कोशिश करो। फायदा क्या होगा इससे? इससे फायदा ये होगा कि अल्लाह का कलाम, अल्लाह के कलाम का जो हक अदा करना है, जो हर एक बंदे के जिम्मे है। याद रखो क़यामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला के पास कुरान मजीद पूछेगा, शिकायत करेगा, ऐ बारी ताला इसने मेरा हक अदा नहीं किया। क्या जवाब दोगे तब? इसीलिए मैं कहता हूं कि उसको वहां अल्लाह के पास शिकायत का, अल्लाह कुरान शरीफ को अल्लाह के पास मौका मत दो, क्योंकि ये नुस्खे हयात भी है और वसीला नजात भी है। आज सुन लेना अलग बात है, रात गई बात गई, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। आज जिस जज्बे से लोगों ने अपने तासुरात को पेश किए हैं, खुदारा उसको आज की रात ही खत्म मत कर दो। उस जज्बे को कल और आइंदा के लिए बाकी रखने की कोशिश करो, अमल में लाने की कोशिश करो। वालिद मोहतरम का नाम मुनव्वर है, उनके वालिद का नाम मुनव्वर। इस बात को याद रखें कि उन्होंने मुनव्वर कर दिया, उस नूर की रोशनी में ये सबके अजीज बन गए। अब मैं चाहता हूं कि शादाब दीन को, उस काम को शादाब करते जाएं, इसलिए कि याद रखो दुनिया फानी है, दुनिया काम आने वाली नहीं है। जैसा कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बनी, तूफान से अल्लाह ने, अल्लाह के अज़ाब से अल्लाह ने उसको, उस कश्ती को बचा लिया। आज बताता हूं कि दुनिया क्या है। दुनिया हमारे लिए कश्ती नहीं, समंदर कश्ती, और ये जो असल कश्ती है ये हमारा दीन। रहना दुनिया में है, लेकिन पानी कितना लेना है। कश्ती पानी अगर पूरा ले लेगी तो कश्ती डूब जाएगी, और
पानी के बगैर कश्ती इस सरहद से उस सरहद तक जा भी नहीं सकती। कश्ती मोहताज है पानी की। ऐसा ही हम भी मोहताज हैं किसके? दुनिया के। हम अपने शौक से नहीं आए, अल्लाह ने भेजा तो हम दुनिया में आए। लेकिन अब अल्लाह ने कुरान और हदीस के ज़रिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, महदी मऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ने हमको ये तालीम दी कि मैंने भेजा दुनिया में, दुनिया में डूब मत जाओ। इस्तेमाल करो तो कैसा इस्तेमाल करो? जैसा कि एक कश्ती पानी का इस्तेमाल करती है, इसी तरह हमको दुनिया भी उसी तरीके से इस्तेमाल करना है। और इसीलिए हमको महदी सलाम का हुक्म है कि दुनिया को तर्क करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि दुनिया सारी बीमारियों की, सारी नफसानी ख्वाहिशात की, सारी लज्जतों की जड़ कौन है? दुनिया है। और हम क्या कर रहे हैं? जो शाखें हैं, हम वो शाखों को काटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूं कब तक शाखों को काटने की कोशिश करोगे? पसंद नहीं है तो जड़ से ही वो काट कर फेंक दो। इसीलिए कहा गया कि दुनिया को तर्क करना चाहिए। और आप याद रखें, ये किसी के पास ये तालीम नहीं है। 73 फिरकों में से हमारा एक फिरका है महदी मऊद अलैहिस्सलाम के सबसे वो तुफैल में हमको ये चीज़ नसीब हुई है कि तुम दुनिया में रहो लेकिन दुनिया के मत हो जाओ। दुनिया में रहो लेकिन दुनिया में मत डूब जाओ। अब डूबना है तो किसमें डूबना है? अब जो दूसरी बात थी दुनिया और दीन, अब दीन में डूबने की बात है। अब दीन में हमको डूबना है। और आज मैं मदरसे वालों से, वालिदैन से, असातिज़ा से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि दीन में डूबने की तालीम दिया करो, दीन का इल्म हासिल करने की तालीम दिया करो। इसलिए कि ये वही है जो आखिरत, दीन, दुनिया आखिरत में काम आने वाली चीज़ दीन का इल्म है। तो मैं इन बातों के साथ उस हस्ती जिन्होंने खामोश खिदमत की, आज उस वक्त अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने खामोशी अख्तियार की, जिसकी वजह से आज दूसरों की ज़बानों से वो खामोशी गूंज रही है। इस तरीके की ज़िंदगी गुजारना चाहिए। इंसान में हमेशा थोड़ी सी शोहरत आ गई तो अना आ जाती है। याद रखो, अना का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इब्लिस से हुआ करता है और फना का ताल्लुक दीन से हुआ करता है। अना हमेशा टिकना चाहता है, अना हमेशा दूसरों को जलील करना चाहता है, अना हमेशा दूसरों को झुकाना चाहता है और फना हमेशा दूसरों के आगे झुकना पसंद करता है। और फना में ही सादगी है, अना में सादगी नहीं आ सकती। सादगी किस में आती है? फना में आती है। तो इसीलिए अना को छोड़ो, फना को अपनाने की कोशिश करो। अगर तुमने फना को जिस तरीके से अपनाना चाहिए उस तरीके से तुम अपना लोगे तो याद रखो अल्लाह ताला उसके बाद का जो मकाम देगा वो बाकी का मकाम देगा। जो हमारे बुजुर्गान दीन उस सफ़र को तय करते हुए बता चुके हैं कि फना फिल्लाह के बाद का मकाम है तो बाकी बिल्लाह का मकाम है। तो जिंदगी के सारे पहलुओं को आपने देखा अज़ीज़ुल्लाह के ताल्लुक़ से, लेकिन उन्होंने जो सफ़र तय कर लिया, आखिरी सफ़र, और बहुत जल्द उन्होंने तय किया, और वो भी उन्होंने अपनी तरफ से नहीं किया। वो बुलावे, जहाँ से बुलावा आया ये चले गए। तो याद रखें कि जब ऐसी हस्ती को मौत का मज़ा चखना है, जिसने सबों के साथ का वो सुलूक रहा, जिसकी निस्बत कुरान के साथ थी,
तो अपने आप में वो थोड़ा सा तज़किया करो कि हम कहाँ पर हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमको भी क्या करना चाहिए। है मैं हमारे फाउंडेशन के लिए एक फेदर कहूँगा जो हमको कामयाबी का मिला। जनाब शब्बीर साहब ने इस प्रस्ताव को सामने लाकर रखे, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कुरान से है और उनकी खिदमत कुरान से थी, तो जाहिर सी बात है दिल मिलना था, मिल गए और ये काम हो गया। जो नहीं किए हैं, आज मैं बताता हूँ आपको, जो नहीं किए हैं हमें उन पर एतराज़ करने का कोई हक़ नहीं है, इसलिए कि करने वाला ने खामोशी से काम करके चला गया और हर फील्ड में काम किया, दुनियावी दीनवी मदद के एतबार से, एजुकेशन के एतबार से, हर एतबार से वो काम कर चला गया। अब याद रखो, सबको तौफीक अल्लाह नहीं देता, जिनको देना है उन्हीं को देता है। तो ये भी हमको अफसोस करने की बात नहीं है, न देरी हुई है और न कुछ हुआ है। अल्लाह जब चाहता है, याद रखो अल्लाह को मंजूर था। बताओ मैं आज प्रोग्राम कितने दिन में बना? 3 दिन में बना है ये प्रोग्राम, और कोई नहीं सोचा था कि वो प्रोग्राम की नौयत ऐसी होगी। नाम सुने सबने कहा हाँ 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 हाँ, काम होता गया। हमारे नाजिम साहब भी 3 दिन में ये तैयार हो गए। ये क्या है? ये ताल्लुक़ है, दिल से दिल का ताल्लुक़ हुआ करता है। आज एक बात कहकर मैं आज की गुफ्तगू बयान को ख़त्म करता हूँ, वो ये है कि आज रिश्ते दिखावे के हो गए हैं, दिल के रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं। और ये कब हो सकता है? ये उस वक्त हो सकता है दिल का ताल्लुक़ इश्क नामे से है, कुरान से है। अगर तुम कुरान को थाम लो तो हो सकता है रिश्तों में जो दरार है वो भी ख़त्म हो जाएगी और सब एक दूसरे के होते होकर रह जाएंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बारी ताला मरहूम ने, अजीज़ुल्लाह मरहूम ने जो खिदमत अंजाम दिए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ तुझ पर नज़र रख कर काम किए हैं, बेहतर से बेहतर से हम क्या सिला हम दे सकते हैं? बेहतर से बेहतर सिला तू ही दे सकता है। लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको बेहतर से बेहतर अजर अज़ीम अता फरमाए और जन्नत नसीब अता फरमाए और उसके दीदार से अल्लाह मुशर्रफ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। चंद अशआर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, समाअत फरमाइए। वो मोहतरम भी थे, मोतबर भी, हमारे दिलबर अजीज़ुल्लाह, मुअल्लिमे दीनियात बेशक, कबीला परवर अजीज़ुल्लाह, वो मोहतरम भी थे, मोतबर भी। मैं उनकी तारीफ क्या लिखूंगा, ज़बान की नुज़हत कहाँ से लाऊं। मैं उनकी तारीफ क्या लिखूंगा, ज़बान की नुज़हत कहाँ से लाऊं। विखार उनका बुलंद तर था, मैं अपनी जुर्रत कहाँ से लाऊं। मैं अपनी जुर्रत कहाँ से लाऊं। वफा की शम्मा जला के घर में, वफा की शम्मा जला के घर में,
کیے منور عزیز اللہ، وہ محترم بھی تھے معتبر بھی. خدا کی مرضی خدا کا منشا، یہ اس کی قدرت کو وہی جانے. نوازتا ہے وہ جس کو چاہے، یہ اس کی رفعت کو وہی جانے، یہ اس کی رفعت کو وہی جانے. مجالس دین تھے ان سے روشن، مجالس دین تھی ان سے روشن. خلوص و پیکر عزیز اللہ، معلم دینیات بے شک. تھے قوم کے بے مثال گوہر، تھے قوم کے بے مثال گوہر. مزاج ان کا تو سادگی تھی، تھے گمراہی سے وہ دور کوسوں. عبادتیں ان کی زندگی تھی، عبادتیں ان کی زندگی تھی. مصیبتوں میں بھی دن گزارے تھے صبر پے کر عزیز اللہ، وہ محترم بھی تھے معتبر بھی. شاداب یاسمین آفتاب اور معیز یہ غم کسے سنائے. یہ پوچھتی ہیں تمہاری بہنیں، بتاؤ بھیا کسے پکارے، بتاؤ بھیا کسے پکاریں. جلانتا کی محبتوں کو چلے ہیں لے کر عزیز اللہ، وہ محترم بھی تھے معتبر بھی. پہاڑ غم کے ہیں سب پہ ٹوٹے، سنبھال سب کو یا خود ہی سنبھلے. جدائی ان کی رلا رہی ہے، جدائی ان کی رلا رہی ہے. اجالے لگتے ہیں اب اندھیرے، اجالے لگتے ہیں اب اندھیرے. بتاؤ اتنی بھی جلدی کیا تھی، بتاؤ اتنی بھی جلدی کیا تھی. سبھی کے دل پر عزیز اللہ، وہ محترم بھی تھے معتبر بھی. آخری کا ایک بند پڑھ کے میں ختم کر دیتا ہوں، نہیں ہمت ہو رہی ہے. نہ مار رہی ہیں نہ تم رہے ہو، جیے تو کیسے جیے بتاؤ. اجڑ گیا ہے چمن خوشی کا، خزاں میں کیسے رہیں بتاؤ، خزاں میں کیسے رہیں بتاؤ. تھے ماں کے دامن میں شاد ماں، دعائیں پا کر عزیز اللہ، وہ محترم بھی تھے
معتبر بھی ہمارے دل بر عزیز معلم دینیات بے شک نہیں ہو رہا پڑھنے کے لیے مجھے. بے ساختہ زبان پہ تم بھی ادب سے مومنوں سر اپنا خم کرو. اس ذات پاک رسول کی محفل ہے تم ڈرو. قرآن جن کی شان میں نازل کیا خدا پہچانیے خدا کے پاس ان کا ہے کیا مقام. جن پر درود بھیجے ملک اور خدا سلام. بے ساختہ زبان پہ دیکھا عروج دین محمد کو جب عمر کھا کر قسم وہ نکلے محمد کا لاؤ سر. قدرت کو کچھ ہی اور تھا منظور اس لیے اس مشتعل کو کر دیا دربار کا غلام. جن پر درود بھیجے ملک اور خدا سلام. بے ساختہ زبان پہ تفسیر عشق پوچھئے حضرت بلال سے. لذت درد پوچھئے زہرا کے لال سے. پوچھئے دید کا مزہ خواجہ ویز سے. شمشیر کیا ہے پوچھئے جن کا علی ہے نام. جن پر درود بھیجے ملک اور خدا سلام. بے ساختہ زبان پہ جن کے لیے بنائے گئے ساتوں آسمان. فرش زمین بچھا کے سجایا وہ مہربان. غنچے کی طرح کھل اٹھی پھر ساری کائنات. یہ سب تھا ایک کے لانے کا انتظام. جن پر درود بھیجے ملک اور خدا سلام. بے ساختہ زبان پہ آیا ہے ان کا نام. جن پر درود بھیجے ملک اور خدا سلام. السلام علیکم. لا الہ الا اللہ اللہ الہنا القرآن